Good morning, students. Today we will start our science chapter, matter in our surrounding. So let's start. Many things appear around us in our daily life, such as fan, table, chair, marker, duster and board. So you can easily understand what are substance. Now how will we identify them? Matter. Why are sensation of sights like smell, touch, hear and taste also? For example, by the sense of sights, we get idea about color, shape and size of the body. By the sense of smell, we get the idea of the order of the objects. By the sense of touch, the hotness and coldness, and by the sense of hear, the sound if any, and by the sense of taste, sweetness, bitterness, sourness, etc. So you must have seen that it is mass in all the things that are there, and you must have also seen that place is also occupied. We also call its volume. So now you have easily understand definition of matter. It has two important points in it. The first is mass and second is volume. Is showing the whiteboard in front of you. You are seeing that it has mass and it has occupied space also. It means कि ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड आपने देखा, ये बोर्ड क्या कर रहा है, इसमें कुछ वेट होगा, थोड़ा बहुत वेट होगा, और इसके साथ में आपने देखा ये एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया होगा. और स्पेस को ऑक्यूपाई मतलब क्या होता है? ऑक्यूपाई करना मतलब क्या होता है? वॉल्यूम. So it have also mass and it have also volume. The same is table, fan, all of them have mass and also have volume. मतलब कि आपके घरों में जैसे कुर्सी होती है, टेबल होता है और सोफा होता है, पलंग होते हैं, तो इन सब चीज़ों में मास भी होता है. आपने देखा मास मीन्स वेट. वेट तो होता है, ये वेट क्या हो जाता है? हमारा मास हो जाता है. एंड देन उसमें कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई किया होता है, तो वो स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है वो क्या हो जाता है? उसका वॉल्यूम हो जाता है. सो नाउ इट हैज़ बिकम ईजियर टू टेल अबाउट मैटर. मतलब बहुत इजी हो गया अब तो हमको मैटर की डेफिनेशन बोलना. तो सो व्हाट इज मैटर? अ सब्सटेंस इज वन विच एंड मास एंड सराउंड द स्पेस. अ सब्सटेंस इज वन विच मास एंड सराउंड द space. It is called mass. In other words, matter is the substance which have mass and occupy space and matter and made up of tiny particles. Now we come to the type of matter we have been since ancient times, according to which matter was divided into 5 parts. ancient times में आपने देखा होगा कि जो पार्ट्स थे, हम जो मैटर थे हमारे, वो कितने 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थे? 5 पार्ट्स में. लाइक वाटर, अर्थ, एयर, फायर, sky. So we can say that all things are made of these. It means कि जितनी भी चीजें हैं वो सब वाटर, अर्थ, एयर एंड फायर, इनसे ही मिलकर बनी होती है. जैसे हमारी पूरी बॉडी, हमारी होल बॉडी भी इन्हीं 5 पार्ट से मिलकर बनी है. If we look at the ancient Indian philosopher method, महर्षि कणाद का नाम आप सभी ने सुना होगा. वह क्या थे? एक फिलोसोफर थे, इंडियन साइंटिस्ट थे. He had said that matter which consists of small particles. कणाद थे, उन्होंने क्या बताया कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, वह किससे मिलकर बना है? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है. Let me explain this through an example. You see this piece of cement in my hand. All of see. Now I break it 2 parts. Now again break. Now I have broken it completely.
you see that some particles placed in my hands. कुछ पार्ट्स मेरे हाथों में लग गए हैं। यदि हम इन पार्ट्स को भी माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इन पार्ट्स को भी हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें देखेंगे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स हमारे इसमें शो होंगे। सो इन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नाउ द मॉडर्न साइंस इज देयर। जो मॉडर्न साइंस था इसने नहीं माना इसको। Now we come to the modern science. We will see that modern scientists have divided matter in two ways. It means कि matter को उन्होंने क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये हमारा क्या था, एंशिएंट टाइम का था, जिसमें मैटर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे, 5 पार्ट्स में। इधर पर जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट थे, मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या किया, मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। इस क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। नाउ द ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर आर 3 टाइप्स। First is solid, second is liquid, and third is gas. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमारे पास क्या है, सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस है। नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट इज continuously moving, second is having space between, and third is one attract each other. So first we will see continuously moving. For this we have take water in a glass and keep it to be stable. When the water becomes stable, then we put 2 or 3 drops of ink. We see that ink gets mixed in water. In this way we can say that there is a continuation movement in matter. Now we see how speed is affected by state of matter. Minimum in solid, more in liquids, maximum in gas. This means you must understand that the speed is lowest in the solid because the particles are very close to it. मेरे हाथ में एक प्लास्टिक बोतल है, प्लास्टिक की जो बोतल है सॉलिड है। सॉलिड के ऊपर यदि इसके पार्ट्स आप पार्टिकल्स आप देख रहे होंगे तो ये क्या है, बहुत क्लोज्ड है। अब यदि किसी भी सॉलिड के या किसी भी पार्टिकल्स से जो मैटर है उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज रहेंगे, जब बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगे तो क्या होगा, इसका वेट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। तो जब मास बहुत ज़्यादा होगा, मास हैवी रहेगा, तो इसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि जो मूवमेंट है इसमें, जो भी कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है किसी भी मैटर में, वो क्या हो जाता है, बहुत लो हो जाता है किसी सॉलिड स्टेट में। द मूवमेंट इन द लिक्विड इज स्लाइटली हायर देन द सॉलिड, मच मोर इन द गैस। नाउ वी सी दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर is it having space between. We also see this through an example. For this we take a glass again, put a mark in glass. ये जो ग्लास है इसमें हमने क्या किया, एक मार्क बना दिया है। ये मार्क किस लिए बनाया गया कि जिससे हमको वाटर लेवल समझ में आएगा कि कितना इसमें वाटर लेवल है, और आफ्टर सॉल्ट को डिसॉल्व करने के कितना वाटर लेवल रहेगा। तो इसको देखने के लिए हमने इस मार्क को इधर पर बनाया है। Now fill the glass with water till that mark. इस मार्क तक हमने इसमें वाटर को फिल कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे। Even after dissolving the salt,
you will see that the water level in it is the same it was before. It means कि जो जब आपने देखा था, हमने जो मार्क लगाया था, इस मार्क के पहले भी वाटर लेवल जितना था अभी भी सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए. So on the basis of this we can say that particles of matter contain space in which this salt is mixed. इसके बीच में यदि स्पेस नहीं होते तो क्या ये सॉल्ट मिक्स होता? नहीं होता. तो इसके बीच में हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी मैटर होता है उसके बीच में क्या होते हैं? स्पेस होते हैं. In this the state of matter is affect just like motion. Minimum in solid, more in liquid, maximum in gas. Now we see the next properties of matter, which is matter attract each other. To understand this, you must be seeing that I have one iron rod in my hand. Whatever we try to break it with the hammer, it will not break or break at all. So why does it happen? Because there is a force of attraction between the particles. It means कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं इसमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है कि ये बहुत क्लोज रहते हैं, और इसकी बेस पर क्या होता है कि इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो ये इजीली ब्रेक नहीं होता. So these are properties of matter.